سبحان اللہ، بیوٹیفل. تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی تفسیر سکھاؤ کسی کو استاد بن کر تو ذہن میں ایک بات رکھنا کہ تمہاری تفسیر حرف آخر نہیں ہے، اس لیے اس کو وہ تعویل کہتے ہیں، ریٹرننگ اٹ بیک ٹو اٹس سورس. وہ کہتے ہیں وی ڈونٹ نو، وی ہیو ٹو ہیو اے میتھڈ ٹو ریچ بیک ٹو دا متکلم، کہ جس کا یہ کلام ہے اسی سے ہی پوچھ کر بتائیں گے وہ کیا کہنا چاہتا ہے. And every time he will come up with a different answer because God is the God of all possibilities. اگر وہ لامحدود ہے، infinity as definition is which does not accept any limit. تو اگر اب رب کی ذات میں اور اس کی صفات میں فرق نہیں ہے تو اس کا کلام لمٹ کیسے قبول کرے گا؟ تو اس لیے جب بھی آپ یہ کہتے ہو کہ میں نے یہ تفسیر کر دی ہے، اس کے علاوہ تفسیر نہیں ہو سکتی، صوفی کے مطابق اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہے دنیا. اور وہ یہاں پر حدیث لاتے ہیں صوفیاء کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب کو بخشوا لوں گا اپنی امت سے، ماں سوائے ان کے جو قرآن کے قیدی ہوں. تو صوفیاء کے مطابق جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو میں نے فتویٰ دیا ہے قرآن پر، اس کے علاوہ اور کوئی پروبیبل میننگ نہیں، وہ قرآن کا قیدی ہے. بیکاز قرآن in its own essence was infinite and now you have limited it. وہ چاہے آپ لسانیات کے ذریعے اس کو لمٹ کریں، اس کو منطق کے ذریعے لمٹ کریں، اس کو فلسفے کے ذریعے لمٹ کریں، اس کو ہسٹوریکل اسباب النزول کے ذریعے لمٹ کریں، you cannot limit the word of God. That is the premise جو تفسیر اشاری کا ہے، تفسیر صوفیاء کا ہے، کہ یہ لامحدود خدا کا لامحدود کلام ہے جو لامحدود لوگوں پر لامحدود زمانے تک لامحدود معنی بکھیرتا رہے گا. اس کے لیے وہ جو سمبل یوز کرتے ہیں اوشن وداؤٹ شور، ابن عربی نے جو یوز کیا. اور جسٹ امیجن ناؤ دا ریچنس آف دس شیخ، جو کبھی ان کو کافر کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، واٹ ایور. ہمارا تو ہے اللہ میاں تو آف ڈیوٹی ہے، ہم ہی فیصلے کر رہے ہیں لوگوں کے ایمانوں کے، اللہ میاں تو کوئی فیصلہ نہیں کر رہا. تو وہ یہ کہتے ہیں، اور بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے ان کی فتوحات مکیہ میں، اور یہ تیرے سننے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہر آدمی ہر وہ چیز لے لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. واہ سبحان اللہ. It is not about Quran, it's about you. اوہ سبحان اللہ، سبحان اور اس کے اللہ. اوپر شیخ کا کمال ہے کہ قرآن کی آیت فٹ کرتے ہیں. اب قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا ولا یضل بہ الا الفاسقین. اسی قرآن سے میں بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں. گاڈ سیئنگ ہمسیلف. تو جب کوئی مولوی کہتا ہے قرآن گمراہ نہیں کرتا تو I'm sorry but you're contradicting Quran. It is the biggest گمراہی. اسی قرآن سے میں بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، اسی قرآن سے میں بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں. ہاں جو فاسق ہیں گمراہ صرف ان کو کرتا ہوں. So it's now not about Quran, it's about the قاری. اگر آپ کے مزاج میں فساد پایا جاتا ہے تو قرآن آپ کو جہاد پر لمبی آیتیں دے دے. بالکل بالکل. اور اگر آپ کو امن چاہیے تو قرآن آپ کو لمبی آیتیں امن پر دے دے گا. بالکل. اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو قرآن تمہارے بدلے کی ہوس کو مزید اوپر کر دے گا. اور اگر معاف کرنا چاہتے ہو تو it will give you 1000 reasons to forgive. So it is never about the text. So we call it the bottomless text. It's not about the text. It's about the reader. It's about the reader. کہ ریڈر کیا انٹینشن لے کر قرآن کے اندر گھسنا چاہ رہا ہے. اگر وہ فساد کی انٹینشن لے کر جا رہا ہے، حضور نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر. تو خالی قرأت کر لینا، قرآن حفظ کر لینا، 14 علوم حاصل کر لینا، اس کے پیچھے صوفی یہ کہے گا کہ اس سب کے پیچھے تمہاری نیت کیا ہے. اور صوفی کے لیے یہ تو قابل قبول ہے کہ وہ کہے کہ میری نیت یہ ہے کہ نوٹ ملیں. صوفی از اوکے ود اٹ. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے فساد مچانا، انتشار پھیلانا ہے، لوگوں کو لڑوانا ہے، تو صوفی کہے گا اس سے بہتر ہے تو گھر بیٹھ جا، ایک نماز نہ پڑھ، کبھی قرآن کے پاس نہ لگ. کیونکہ اگر تو قرآن کے ساتھ لگے گا سوائے تباہی کے، اٹس امپاورنگ یو سو مچ نا. اب آپ کے دل میں فساد ہے اور آپ لوگوں کو قرآن کی آیتیں بتا رہے ہو.
وہ تو मौलवी साहब से पूछे भाईजान 14 वजह मानते हैं आप जो सारों को ये कहे जा रहे हैं आपको सारा कुछ पता है कुरान क्या कह रहा है इस बारे में, रसूल क्या कहता है, सहाबा क्या कहते हैं, मंतिक क्या कहती है, फलसफा क्या कहते हैं, लिसानियात क्या कहती है, नहीं, लेकिन फिर भी फतवे लगाएगा। तो इसलिए सूफीइज्म में कुरान से ज्यादा कारी की ट्रेनिंग की जरूरत है, यानी उस नजर को ट्रेन करना है जो कुरान को पढ़ रहा है। अब हाउ डू आई गेट बैक टू मुतकल्लिम, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। मैं किस तरह वो काम करूं कि मैं अल्लाह से पूछूं कि तेरी मुराद क्या है इस आयत से, और वो मुराद हरफ आखिर नहीं हो। सबसे पहले तो जो भी सूफी तफसीर पढ़ना चाहता है उसको सबसे पहले अपनी अना का ये बुत तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज इन सूफी तफसीर इट्स यू कैन से इट्स एन ओशन ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। कुरान इज लाइक अ गोदाम, कुरान इज लाइक अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। कुरान इज नॉट वन मैसेज, it is many messages in one message. Subhanallah, Subhanallah. And it depends upon who is approaching Quran. उसके लिए उसको वो वही वाला मैसेज देगा। So अब क्या करूं मैं? तो सूफिया यहाँ पर आपने एक लफ्ज सुना होगा जीनस एंड डिफरेंशिया। हमारी बेसिक लॉजिक है जीनस इज व्हेन वी प्लेस थिंग्स इन अ ब्रॉडर कैटेगरी। जिस तरह मखलूक तो उसमें इंसान भी आ जाएगा, जानवर भी आ जाएगा, उसमें परिंदे भी आ जाएंगे, मछलियां भी आ जाएंगी। सो जेनस इज अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी एंड इट्स लाइक वी ट्रेस द सिमिलैरिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड पुट देम इन वन कैटेगरी। एंड डिफरेंशिया इज कि जब हमने इंडिविजुएशन एक को दूसरे से अलग करना होता है। अब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट काम है, लेकिन सोक्रेटिस कहता है कि तुम्हारी मारिफत मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक चीजों को बतौर कुल ना देख लो और बतौर जुज ना देख लो। चीजों में क्या क्या सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं कि उन चीजों को हम एक कैटेगरी में ला रहे हैं, और फिर इंडिविजुअल्स के अंदर क्या क्या डिससिमिलैरिटी है। सो इट्स बेसिकली टू अपोजिंग थिंग। अब कुरान के आप दो लफ्ज, मैंने उस दिन भी बात की थी, कुरान के दो नाम ले लें तो आपको समझ आएगा कि कुरान कितना होलिस्टिक है। और जब भी मैं कुरान के बारे में कुछ क्लेम करने लगता हूं तो मुझे 10 दफा तौबा करनी चाहिए। कुरान का एक नाम कुरान है, सब आप जानते हैं। कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी सरनामा कलाम में कि अल्लाह फरमाता है कि इन्नहु लकुरआनुन करीम, ये कुरान है बहुत ज्यादा इज्जत वाला, बहुत ज्यादा मर्तबे, फी किताबिन मकनून, लेकिन उसको छुपा दिया है मैंने एक किताब में। यानी जो कुरान आप देख रहे हैं ये किसी और चीज में छुपा हुआ। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, और इसको छू नहीं सकते मां सिवाय वो जो साफ है। अब कुरान को तो कोई भी छू सकता है, चाहे कोई मैला है। तो यहां पर सूफिया कहते हैं कि इसका मतलब है मतालिब कुरान, रूह कुरान, कल्ब कुरान, मुराद मुतकल्लिम, कि अल्लाह क्या कहना चाह रहा है आयत में। अल्लाह कहता है कि तुम इसको छू भी नहीं सकते, ये किताब जो तुम्हारे हाथ में, इसके अंदर एक किताब बंद है, और उस किताब को खोलने का तरीका ये है कि अपने आप को पाक करो। So then the descent of the meaning of the Quran is only possible अगर तुम पाक हो। तो फिर वो premise ठीक हुआ ना, it's not about Quran, it's about you, it's about you। हम इसको सारी बात को खत्म करेंगे हजरत अली के 3 अशार पर, ताकि समझ आए कि सूफिया की तफसीर का ओरिजिन कहां से होता है। अब कुरान ये कह रहा है कि मैं बंद हूं और जब तक तुम पाक नहीं होते मैं तुम पर नहीं खुलूंगा। So it's all about your intention. It's all about your preparation. So how do I prepare for a Sufi exegesis? What do I do? तो इसमें जो सबसे पहला नाम है वो सहल तुस्तरी है। सहल तुस्तरी is the first writer जिसने the methodology of Sufi तफसीर को open किया। And it's a beautiful small book which I will try to, मैं देखता हूँ टाइम मेरे पास। Oh, it's fine. नहीं, we've got time till Maghrib. माशाल्लाह, ठीक है। तो अब उसका तरीका क्या है? आपको बुलाया ही है तो वो उसको अगर आप आम जुबान में समझना चाहते हैं तो वो फलसफा है जाकिर व मज़कूर है, जो जिक्र करता है और जिसका जिक्र किया जाता है। So सहल तुस्तरी starts with the statement कि अल्लाह की जितनी भी किताबें हैं वो अल्लाह का सिर है,
all the divine books that have been revealed are a secret of God. सिर कहते हैं सीक्रेट. अब वो कहते हैं कि कुरान का सीक्रेट क्या है? वो कहते हैं हरूफ मुकत्तयात. मुकत्ता अरबी में कहते हैं कि जो एक दूसरे के साथ हो लेकिन कटा हुआ हो. जिस तरह अलिफ लाम मीम, हा मीम, यासीन, त्वाहा, अलिफ लाम रा. यहां से वो स्टार्ट करते हैं अपना मेथड कि ये जितने भी हरूफ मुकत्तयात हैं इन सबको इकट्ठा करो. बिकॉज सूफीइज्म में मुर्शिद के अलावा आप सफर नहीं कर सकते. तो यू शुड हैव वन मुर्शिद हु इज कनेक्टेड टू द अपर रेल्म. वो इनमें से 12 इस्मा बनाएगा. इन्हीं में से उसका काम ये है. आजकल तो विसाल अल्लाह बड़े करवाते हैं. तो मैं शेख के पास गया हूं, मैं कहना जी 12 इसम के 10 कहना 7.5. इट्स नॉट दैट इजी. अगर आप फजूल बातें करोगे तो देयर इज समवन हु इज गोइंग टू कैच यू. तो हरूफ मुकत्तयात से 4 नामों के 3 पेयर्स बनाए जाते हैं. 3 या 3 नामों के 4 पेयर्स बनाए जाते हैं जो हर एक कारी के लिए फर्क होंगे, हर एक मुरीद के लिए फर्क होंगे. दे विल नॉट बी सिमिलर. उन्हीं हरूफ का आप अरेंजमेंट करोगे और अब आप उनका जिक्र शुरू करो. और जिक्र का रिदम भी मुर्शिद बताएगा कि हर इस्म को किस रिदम के साथ करना है. क्योंकि सूफी कॉस्मोलॉजी में पूरी दुनिया में जो कुछ कौनो मकान में पाया जाता है इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ गॉड. हम सब अगर इस दुनिया में बैठे हैं, क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि वो खालिक है. हम सब के रंग एक दूसरे से फर्क क्यों है? क्योंकि वो मुसव्विर है. हम सब की पर्सनैलिटी एक दूसरे से जुदा जुदा क्यों है? क्योंकि वो वाहिद है. सो व्हाटएवर यू सी इन दिस वर्ल्ड, कोई भी क्रिएशन आप देखते हो वो अल्लाह ताला के अस्मा का रिफ्लेक्शन है. तो अब वो शेख जो है वो पेयर्स बनाएगा अस्मा के, और द पेयर विल बी ऑलवेज इन ऑपोजिशन टू वन अनदर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो एक इस्म लेगा अल्लाह ताला का जो अपने ही दूसरे इस्म के बिल्कुल बैंग ऑपोजिट होगा. जिस तरह जाहिर है तो उसके साथ बातिन का विर्द करवाएगा, अव्वल है तो उसके साथ आखिर का विर्द कराएगा. अगर वो मुही है जिंदगी देने वाला तो अल मुमीत जो जिंदगी लेता है. अब these are two opposing attributes. कुरान में जितने भी अल्लाह के अस्मा हैं they stand in stark opposition to each other. तो वो विर्द करवाएगा. अब जब वो विर्द शुरू करेगा तो what will happen? According to Sahal Tustari, he will have 4 ascents. जाकिर जो यानी जो पूरा फलसफा है उसके प्रेमिस किन बुनियादों पर है? पहला प्रेमिस ये है कि हर चीज जो है वो इस्माए इलाही के नतीजे में इस दुनिया में है. दूसरा ये है कि कुरान इस्माए इलाही को इकट्ठा करने वाला है. अब कुरान की जब बात करते मैं बीच में भूल गया, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वो टाइम के चक्कर में बात भूल गया था. कुरान लफ्ज, इसके 2 मादे हैं. बाज उलमा के नजदीक कुरान का लफ्ज काफ रे नून कराना इससे निकला है, और बाज के नजदीक ये कर से निकला है, काफ रे. अब जो इमाम अशरी हैं, अशरिया सिलसिले के जो इमाम हैं और लुगत के बहुत बड़े इमाम हैं, उनके मुताबिक कुरान जो है वो कराना से निकला है. और कराना कहते हैं कराना शै बिशै, एक चीज को दूसरी चीज के करीब कर देना. तो कुरान इज जीनस ऑफ द फिलोसोफर्स, जो हर चीज को एक चीज के अंदर इकट्ठा कर देता है, जमा कर देता है. एक चीज को दूसरी चीज